Hello students, welcome once again. Unit number 14, biomolecules, and presently our topic is a disaccharide, and in disaccharides we are focusing on three main disaccharides: sucrose, maltose and lactose. But we know that in our last sessions, means lecture number 8, we completed a disaccharide sucrose, and now today we will focus on a maltose as well as lactose. So let us start with a maltose sugar. We know that the other name of maltose sugar is called as a malt sugar too. It's a malt sugar, sometimes called as a malt, right? And the general formula is C12H22O11 because it's a hexose, because it made up with a hexose sugar. So C12H22O11 is the molecular formula for this maltose, because we know that all maltose, sucrose and lactose all are having the same molecular formula because all are made up with a hexose sugar. But in hexose sugar we know that there is aldose sugar, ketose sugar in aldose sugar, so various chiral centers, so they having a different name, right? So how we obtain the maltose sugar? So it is obtained by the partial hydrolysis of starch. For example, this is a structure of starch, C6H10O5 N times. It's a starch, and this starch which is hydrolyzed with the help of such a type of enzymes, we know that it's called as a diastase, or either you have to carry out this hydrolysis with the help of acid media like dilute hydrochloric acid, whatever, right? Otherwise you have to hydrolyze with the help of some biocatalysts like enzymes. So here the diastase, such a type of enzymes which is present in malt, okay? So it's converted into what? So it's converted into C12H22O11 of maltose. Once again, it's a partial hydrolysis of starch by the enzymes diastase presence in the malt, okay? So which is converted into maltose. Okay, now the further hydrolysis of maltose, for example, now the further hydrolysis of maltose with the help of maltase, right? It's converted into C6H12O6 plus C6H12O6 and both units of D-glucose. Because we know that in the definition of disaccharides we says that carbohydrates which upon hydrolysis gives two molecules of same or different monosaccharide. Here the same molecules that we have to observe. So maltose when hydrolyzed with the help of maltase is converted into glucose and glucose. That's why it's a D-glucose. तो आपको समझ में आ गया होगा. क्या समझ में आया? आपको मालूम पड़ा ये स्टार्च है ना, वो D-glucose से ही बना हुआ है. सपोज के समझिए आपके स्टार्च में 100 मॉलिक्यूल्स है, यानी 100 मोनोमर्स है. मैं ऐसा एग्जाम 100 नहीं है, मोर देन 100 है, लेकिन 100 है वो ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है. अगर आप उसका पार्शियल हाइड्रेशन किस तरह से करेंगे कि 100 में से 98 कन्वर्ट कर दिए, दो का जो यहाँ पे पेयर मिला है इसको डाइमर बोलते हैं, उसको माल्टोस बोल सकते हैं. और ये जो डाइमर था उसका भी मैंने हाइड्रोलिसिस कराया तो सिंपल में आ गया अभी वो दोनों ग्लूकोज. इट मींस दैट स्टार्च इज आल्सो मेड अप विद डी ग्लूकोज, जो हम देखेंगे, हम मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जब हम पॉलीसैकेराइड्स का स्टडी करना शुरू करेंगे तब. तो आपको पूरा समझ में आ गया कि हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ माल्टोस विच यील्ड्स 2 मोल्स ऑफ डी ग्लूकोज. ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. लेकिन हमें मालूम है हम इंटरेस्टेड कहां पे है. देखिए यहाँ पे जो जैसे कोई बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको शॉर्ट नोट पूछते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माल्टोस, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा. बट इन द एग्जामिनेशंस लाइक NTA गवर्न एग्जामिनेशंस लाइक JEE मेन और JEE एडवांस और नीट, उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारी गुजसेट में किस तरह से पूछे जाते हैं, गुजरात बोर्ड की जो MCQs होती है वो किस तरह से ड्रॉ की जाती है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपके साथ
जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सुक्रोज के लिए समझाया था, वही सेम स्टाइल में यहाँ पे भी दिखाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्लूकोज ही ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए मैं ग्लूकोज ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए फिर से अच्छी तरह से आप देखिए, यहाँ पे H है, C है, OH है, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। वन सेकेंड, यहाँ पे तो मुझे मालूम है HCOH का ही कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे OH और H का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे HC का कॉम्बिनेशन है। सेम वे यहाँ पे भी मैं इसलिए कट कर रहा हूँ अभी, मुझे आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है, वो किसका यूनिट है आपको मालूम है? ये देखिए आप, अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट है। अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट आपको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसमें एक नंबर देखिए, पूरी तरह से अच्छी तरह से है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लास्ट लेक्चर में सुक्रोज का यहीं से लफड़ा हुआ था, राइट, ये लॉक हो गया था, लेकिन यहाँ पे अभी अनलॉक सिचुएशन में है। जो अनलॉक होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो पोर्शन है वो रिड्यूसिंग यूनिट है। अभी ये रिड्यूसिंग पार्ट में यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसमें मैं फिर से ग्लूकोज यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए मैं किस तरह से ग्लूकोज यहाँ पे दिखाता हूँ। H है, C है, 2 3 4 5 और 6, क्लियर, बराबर है। देखिए आप यहाँ पे HCOH का कॉम्बिनेशन है, हमें मालूम है। यहाँ पे OHCH होते हैं, हमें भी मालूम है। फिर यहाँ पे जो 4th नंबर पे है वहाँ पे भी HCOH ही है। और यहाँ से जो ये जो साइकिल बना रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे जो O का साइकिल यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, इस तरह से होगा। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से साइकिल मुझे दिखाना पड़ेगा। देखिए ये O का साइकिल कहाँ पे जुड़ा हुआ है? 5 नंबर, क्योंकि ये पायरेनोस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? पायरेनोस फॉर्म है। देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बहुत अच्छी तरह से आप समझिए। ये 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको समझाया इस तरह से है कि ये जो यूनिट है और ये जो यूनिट है, मैंने उसको दोनों के साथ जोड़ूंगा। अभी क्या हुआ कि इसका जो 4th नंबर में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, देखिए वो भी ऑक्सीजन के साथ लिंक यहाँ पे करेगा और वो यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे जुड़ रहा है? ये जो यहाँ पे जो प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, ये देखिए ये अल्फा से जुड़ा हुआ है। ये कहाँ पे? ये अल्फा पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही है ना मेरे। देखिए ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज ही है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ने अभी माल्टोस बनाया हुआ है। ये जो माल्टोस अभी देख रहे हैं ना, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन होके मुझे यहाँ पे मिल रहा है, वो अल्फा डी माल्टोस मुझे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अल्फा डी माल्टोस का स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब समझ में आ रहा है आपको? क्यों फिर से अल्फा डी ग्लूकोज का देखिए फर्स्ट पोर्शन से ये अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन ही थी, उसने यहाँ से लॉक, लेकिन यहाँ पे देखिए एक नंबर है ना, उसका लॉक हो गया है पूरी तरह से, अभी वो खुलेगा नहीं। यानी ये जो पूरा माल्टोस को मैं पानी में डालूंगा ना, तो यहाँ से ओपन नहीं होगा, सिर्फ यहीं पे म्यूटा रोटेशन शुरू हो सकता है। यानी इसमें म्यूटा रोटेशन डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन इसका जो ये जो पोर्शन है वो नॉन रिड्यूसिंग है। लेकिन हमें तो देखना ये है, दोनों नॉन रिड्यूसिंग होंगे तो ही मेरी फाइनल शुगर है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है। लेकिन इसमें से ये पोर्शन तो क्या है? रिड्यूसिंग ही है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस दिखाया हुआ है, इसका जो प्रोजेक्शंस है, हमने पहले भी बोला था कि उसको हम क्या बोलेंगे? फिशर प्रोजेक्शंस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्योंकि आपकी बुक में फिशर प्रोजेक्शंस की कोई भी बात समझाई नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि एनटीए के कहीं पेपर में इस तरह से भी ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया।
अभी देखिए, अभी मैं आपको दूसरा जो मैं पोर्शंस यहाँ पे समझाना चाहता हूं वो भी आप समझिए। अभी मैं आपको हावर्थ का उसमें समझाना चाहता हूं। हावर्थ किस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए मैं हावर्थ का स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे क्या है, H, सेम वे HN OH, यहाँ पे क्या है OHN H, यहाँ पे क्या है HN OH, फिर यहाँ पे क्या है CH2OH और यहाँ पे क्या है H। समझ में आ गया मैंने क्या दिखाया है आपको? ये जो मैंने आपको दिखाया है वो ये ग्लूकोज का मैंने पोर्शन अभी आपको दिखाया हुआ है। अब देखिए अल्फा डी ग्लूकोज ही है, देखिए आप समझ लीजिए। फिर से मैं आपको नंबर की, अगर आपको थोड़ी आपको परेशानी हो रही है तो मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 1 नंबर पे है, ये 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है, ये 5 है और ऊपर वाला 6 है। अभी ये मैंने अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। कोई बात नहीं, अभी हम दूसरा स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए आप, यहाँ पे क्या है H OH H OH OH H H OH CH2OH और H। ठीक है, फिर से मैं नंबर यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं। वंस अगेन 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या था आपको मालूम है ना, यहाँ पे क्या था OH, यहाँ पे क्या था OH। हमने आपको पहले भी बोला था कि the two monosaccharide units are joined together through an ethyl or oxide linkage formed by loss of a molecule of water। तो यहाँ से पानी निकल जाएगा और यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रहा है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ था, यही लिंक। समझ में आ रहा है? ये जो लिंक आप देख रहे हैं, फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो लिंक आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन सा था, ये कौन सा था, ये भी अल्फा था, ये भी क्या है अल्फा है। ये जो आपको लिंक यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखिए ये दूसरा, इसका ये कुछ भी नहीं, ये इसको तो हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी हम बोल सकते हैं। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और ये जो पोर्शंस मेरा था वो नॉन रिड्यूसिंग पोर्शंस था, नॉन रिड्यूसिंग है ये वाला, और ये वाला क्या है रिड्यूसिंग है। क्यों रिड्यूसिंग है ये? क्योंकि एक नंबर उसका ओपन है, इसका एक नंबर लॉक हो गया है। यानी अभी इसमें हम पानी डालेंगे तो ये ओपन हो सकता है, ये ओपन नहीं हो सकता है। पानी ही डालना है हमें, हाइड्रोलिसिस नहीं करना है, माइंड वेल। ठीक है, म्यूटारेटेशन ओनली सीन इन द एक्वियस पोर्शंस। तो एक्वियस में हमको ये देखना पड़ेगा। तो आपको पूरा समझ में आ गया मैं क्या बोलता हूं? तो देखिए, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे जो मैंने दिखाया है वो हावर्थ प्रोजेक्शंस था। ये क्या था? हावर्थ प्रोजेक्शंस है। ये हावर्थ प्रोजेक्शंस ऑफ अल्फा डी माल्टोस का मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी कहीं बच्चे को ये क्वेश्चंस हो रहा है, अच्छा दोनों आप देखिए, ये पायरोनोस फॉर्म में है, दोनों पायरेनोस फॉर्म में ही हमें दिखाई दे रहे हैं। सो वंस अगेन, ये जो पोर्शंस रिड्यूसिंग, देखिए अभी आप इसको पानी में डालेंगे तो यहाँ पे म्यूटा रोटेशन होने की वजह से यहाँ पे एल्डिहाइड आ जाएगा। तो एल्डिहाइड जिस तरह से आता है, तो हमें मालूम है ना, जहां पर भी हमने एल्डिहाइड की जो जैसे जैसे बात की थी, तो हमें पता है कि जिस तरह से एल्डिहाइड आ रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर में क्या बनाएगा, ये फ्यूचर में ओसेजोन बना सकता है। ओसेजोन का मतलब क्या है कि आप इसमें फिनाइल हाइड्रेजिन एक्सेस अमाउंट में डालेंगे तो ओसेजोन मिल सकता है। ओसेजोन का मतलब ही है रिड्यूसिंग हो तो ही ओसेजोन बन सकता है, क्योंकि फिनाइल हाइड्रेजिन से कौन रिएक्ट करता है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कब रिएक्ट करेगा? एल्डिहाइड होगा तभी ना। तो एल्डिहाइड खुलेगा कब? तो कि जैसे उसको वाटर में डालेंगे तब कैसे खुलेगा? अनलॉक होगा तो ही खुलेगा, ये नहीं खुलेगा, यही सिर्फ खुल सकता है।
दूसरा उसमें म्यूटा रोटेशंस भी, ये उसकी दूसरी क्या है कि फैलिंग सॉल्यूशंस और फैलिंग और टॉलेंस दोनों के साथ ये डेफिनेटली रिएक्शंस दे पाएगा, रिड्यूसिंग, क्योंकि विच इज रिड्यूस टॉलेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशंस टू। और उसका क्या हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं, उसका म्यूटा रोटेशन भी हो रहा है, म्यूटा रोटेशन भी हो रहा है। ये सभी रिड्यूसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे दिखा रहा हूं। और दोनों जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ग्लूकोज, वो पायरेनोस फॉर्म में ही होंगे, क्योंकि पायरेनोज ही उसका सेटिस्फेक्शन कर सकता है। क्यों? तो कि इसलिए क्योंकि मिथाइलेशन भी किया हुआ है मैंने, तो मिथाइलेशन से भी ये पता चल सकता है। तो उसका C1 है और उसका C4 जुड़ा हुआ है। सो वंस अगेन, जैसे मैंने ये माल्टोज है is hydrolyzed by the enzyme maltase, which is specifically hydrolyzed alpha glycosidic linkage. So therefore, the non-reducing glucose unit in maltose must be present in alpha form, or in other words, C1 alpha of non-reducing glucose unit is attached with the C4 of the reducing glucose unit. तो इस तरह से भी हम यहाँ पे समझा सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको इसका जो पॉइंट है वो मैं इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं। देखिए मैं क्या दिखाना चाहता हूं कि ये जो C1 है, किसका C1 है? अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है? पायरेनोज। उसका जो पायरेनोज फॉर्म है वो ऑक्सीजन के साथ किससे जुड़ा हुआ है? तो कि C4 अल्फा डी ग्लूकोज के पायरेनोस के साथ जुड़ा हुआ है। ये कंप्लीट है, ये मैंने नट सेल में ये बात कह दी है। एग्जाम में कई बार इस तरह से क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं कि C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोस फॉर्म एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोस फॉर्म के साथ वो इस तरह से जुड़ के, ठीक है, वो कौन सा स्ट्रक्चर्स बनाएंगे? अल्फा डी माल्टोस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये मेरा पूरा एफर्ट है आपको समझाने के लिए, आपको यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। अब फिर से देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस पूछा था कि एसिटाइलेशन ऑफ माल्टोज गिव्स व्हाट। तो अब देखिए इसमें कितने OH है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वे भी माल्टोज ऑक्टा एसीटेट ही दे पाएंगे। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया है आपको? तो यानी मैं अभी एक ही जो अब मेरे पास जो होती है, क्योंकि इसमें से स्ट्रक्चर्स ज्यादातर पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये बहुत इजी पोर्शन है। आप उसमें से अच्छी तरह से गेन भी, ये जो इसका जो मार्क्स है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो हम यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं वो मेरा पोर्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो शुगर है वो हमने बताई थी, वो है लैक्टोज। लैक्टोज है ना, उसको कई बार हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर एक का अलग अलग एक नाम है। मिल्क शुगर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फ्रूट शुगर या टेबल शुगर भी बोला था। ग्लूकोज को हमने बोला था हनी शुगर या ग्रेप शुगर बोलते हैं। माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं। इस तरह से हम इसको मिल्क शुगर भी बोल सकते हैं। और उसका जो फॉर्मूला है वो सेम ही है, C12H22O11, C12H22O11। ठीक है, फिर वो कहाँ पे मिलता है मुझे? तो कि विच इज अकर्स इन मिल्क। वो कहाँ पे होता है? मिल्क। जैसे मेरे पास ह्यूमन मिल्क है, तो ह्यूमन मिल्क के अंदर इसका जो परसेंटेज होता है वो 6 to 8% होता है। और जो काउज मिल्क होती है, राइट, काउज मिल्क में, तो उसका जो परसेंटेज मुझे काउज में मुझे मिल रहा है वो नियर अबाउट मुझे मिलेगा 4 to 5%। ओके, तो ये जो मैंने आपको दिखाया है वो लैक्टोज की एक मैंने इंट्रोडक्टरी पोर्शंस मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। इसको क्यों मिल्क शुगर बोलते हैं आपको समझ में आ गया? क्योंकि ह्यूमन मिल्क और काउज मिल्क में ये मिलता है, इसलिए उसका नाम मिल्क शुगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसका फ्यूचर में क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, जो हम कर्ड में या सब कुछ देखते हैं। अभी हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मुझे मिलेगा, ये मेरा नेक्स्ट पोर्शन है। देखिए, मेरे पास क्या है? C12H22O11 है। हम उसको क्या बोलेंगे?
ये लैक्टोज शुगर है। जैसे ही लैक्टोज शुगर का मैंने यहाँ पे क्या कराया हुआ है, जैसे मैंने एक मेरे पास इमल्सिन करके एक एंजाइम्स होता है, राइट, उससे मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो मुझे C6H12O6 और C6H12O6 दोनों मिल सकते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट वन है या कोई भी है वो एक डी ग्लूकोज, और दूसरा जो मुझे मिल रहा है वो है डी गैलेक्टोज। ये मुझे 1:1 एक्चुअली इक्विमोलर मिक्सचर में मुझे मिल सकते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया है कि ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज विथ डाइल्यूट एसिड्स और विथ अ हेल्प ऑफ एंजाइम्स, राइट, सो इट गिव्स अ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। लेकिन ये तो सब कुछ प्राइमरी बात है, लेकिन हमें तो ज्यादा इंटरेस्टेड कहाँ पे है, हम स्ट्रक्चर में। तो पहले हम कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देखिए हम आपको दिखाएंगे फिशर प्रोजेक्शंस है, और फिशर प्रोजेक्शंस किसका मैं दिखा रहा हूं अभी, देखिए यहाँ पे क्या है, OH है। आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि जो कोई भी है वो बीटा है, क्योंकि OH लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर रखा हुआ है। और ऐसे दौड़ते आपको समझ में आना चाहिए कि सर जी ये रिड्यूसिंग यूनिटी हो सकता है, क्योंकि एक नंबर अभी खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ से कोई साइकिल अभी नहीं बनी हुई है। देखिए ये है वो है CHCOH है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे क्या है, OHCH है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, देखिए हमें मालूम है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन का लिंकेज है वो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जिसको भी अभी थोड़ा नंबर के बारे में आपको समझना है तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये 1 नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6, 1 और 5 के बीच में यहाँ पे साइकिल बनी हुई है, और ये बीटा पोजीशंस पे होगा। ग्लूकोज ही हमें दिखाई दे रहा है, बीटा डी ग्लूकोज ही दिखाई दे रहा है, उसके एक नंबर पे अभी खुला हुआ है, यानी ये जो फ्यूचर में रिड्यूसिंग यूनिट की तरह बिहेव कर सकेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो अभी यहाँ पे दिखाया हुआ है वो कुछ भी नहीं है, देखिए ये बीटा डी ग्लूकोज का मैंने यूनिट यहाँ पे बताया हुआ है, और ये जो यूनिट है वो आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये रिड्यूसिंग यूनिट ही है। क्लियर, पायरेनोसोम भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे जो यूनिट दिखाएंगे वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सेम मैं यहाँ से इस तरह से दिखा सकता हूँ। यहाँ पे H है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है, ठीक है, ओके। अभी देखिए यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे OH है, यानी ये बीटा वाला है। ये तो बीटा है लेकिन ये भी बीटा वाला ही होगा, क्योंकि H यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, देखिए HCOH किया हुआ है, यहाँ पे मैंने OHCH किया हुआ है, फिर से मैंने यहाँ पे OHCH ही किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने H लिया हुआ है। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से मैंने ऑक्सीजन की एक लिंक है वो यहाँ पे ले ली है मैंने। फिर से मैं आपको नंबर फिर से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपने OH का पोजीशन देखा, देखिए हमें मालूम है ना ग्लूकोज में 3 नंबर में OH यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ गैलेक्टोज होता है ना, उसको 3 और 4 दोनों पोजीशन में OH कहाँ पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हम उसका ड्रॉ करते हैं। फिर से व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर काफी तरह से सिमिलर। यहाँ पे 3 नंबर पे OH है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर में भी OH लेफ्ट हैंड, तो उसको डी गैलेक्टोज बोलेंगे। ये जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है वो बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया हुआ है, पर देखिए उसका एक नंबर है ना वो लॉक हो जाएगा अभी, तो वो यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग में चला जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक तो रिड्यूसिंग हमारे पास है, तो एज ए होल हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो शुगर हमें यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे हम लैक्टोज शुगर बोलेंगे, तो वो इस तरह से कुछ यहाँ पे देखिए, ये जो है वो यहाँ से जुड़ गया है, कहाँ पे, ऑक्सीजन की साइकिल से यहाँ पे,
समझ में आ गया? अब देखिए फिर से मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये जो था ये भी बीटा पोजीशन थी और ये भी बीटा पोजीशन ही है। तो ये इस तरह से जो यूनिट मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो मैं जो यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो कुछ भी नहीं है। ये कौन सा है, ये मैं यहाँ पे दिखाया है वो कौन सा है, ये पूरा स्ट्रक्चर है वो बीटा डी लैक्टोज का मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, बीटा डी लैक्टोज का स्ट्रक्चर है। और ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है वो फिशर प्रोजेक्शन है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ फिशर प्रोजेक्शन में, क्योंकि जैसे अच्छी जो एग्जामिनेशंस होती है जिसको हम बीट्स भी बोलते हैं, नीट में, JEE में, सभी जगह पे इस तरह से भी कोई क्वेश्चन है वो आपको स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे हार्वर्ड का भी दिखा सकते हैं, फिशर का प्रोजेक्शंस भी दिखा के वो आपको ये क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकते हैं। तो ये तो मैंने जो अभी आपको बताया वो स्ट्रक्चर कौन सा था, ये मैंने कौन सा स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाया है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है ना? ये मैंने आपको दिखाया था फिशर का। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हार्वर्ड का स्ट्रक्चर्स क्या होता है। सिंपल है, हार्वर्ड का स्ट्रक्चर्स भी मैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। देखिए यहाँ पे O है, अब देखिए हमें मालूम है यहाँ पे H है क्योंकि यहाँ पे OH है, फिर यहाँ पे क्या है, H है और OH है। फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा OH और H है, यहाँ पे OH और H है और यहाँ पे CH2OH है और H है। नंबर नहीं पता चले तो मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये जो है वो मेरा 1 नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो यूनिट मैंने अभी आपको दिखाया है वो जो यूनिट मैंने अभी फिर से, वो कौन सा यूनिट है, वो है गैलेक्टोज का मैंने यूनिट दिखाया हुआ है। कौन सा गैलेक्टोज है, बीटा गैलेक्टोज का यूनिट मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। मुझे मालूम है ये जो यूनिट है वो नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों? क्योंकि अभी उसका 1 नंबर जुड़ेगा, तो ये नॉन रिड्यूसिंग यूनिट मैंने यहाँ पे, और या हम उसको बोल सकते हैं नॉन रिड्यूसिंग हाफ भी कई बार कई बुक में ऐसा दिखाया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं उसका जो रिएक्शंस है वो मैं कहाँ करना चाहता हूँ, आप देखिए। यहाँ पे क्या है, OH, H, H, OH। यहाँ पे क्या है, OH, H। यहाँ पे क्या है, H और OH है। देखिए यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन मैंने डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से OH और यहाँ से OH में से पानी निकल गया है और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये है कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है। CH2OH और H तो है। फिर से मैं नंबर आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये जो नंबर मैं आपको यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, फिर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। समझ में आ रहा है? ये जो पोर्शंस मैंने आपको यहाँ पे जो दिखाया हुआ है वो बीटा का पोर्शंस है, ये बीटा है। सेम वे ये भी आप कहाँ पे देख रहे हैं, ये भी बीटा का ही पोर्शंस था। तो मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर्स की जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको समझाई हुई है कि ये जो यूनिट है वो मेरा ग्लूकोज यूनिट है। कौन सा यूनिट है, ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। फिर डी में भी कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज। और ये जो यूनिट मैंने आपको दिखाया है वो रिड्यूसिंग यूनिट है क्योंकि इसका 1 नंबर अभी खुला हुआ है, तो वो रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? ये जो मैंने अभी आपको बताया है वो हार्वर्ड प्रोजेक्शन ही मैंने आपको दिखाया हुआ है। और जो आप देख रहे हैं हार्वर्ड प्रोजेक्शंस, फिर से मैं आपको यहाँ पे मैं थोड़ी बात आपके साथ थोड़ी ज्यादा भी शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या मुझे मिला है कि ये भी ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकते हैं। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे CHO पानी में जैसे डालेंगे तो ओपन हो सकता है। फिर ये जो फैलिंग सॉल्यूशन हमेरा होता है या हमेरा टॉलेंस जो होता है उसका भी वो रिड्यूस कर सकेंगे। म्यूटा रोटेशन तो उसमें हमें दिखाई देता है ही, म्यूटा रोटेशन।
पायरेनोस फॉर्म भी है हमारे पास। ये जो हमें दिखाई दे रहा है वो पायरेनोस फॉर्म में ही हमें दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? नटशेल में हम उसको क्या बोलेंगे? तो कि नटशेल में मैं कुछ इस तरह से भी आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि कौन सा पोर्शन किसके पोर्शन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो C1 है, मेरा C1 पोजीशन है, वो किसका है? तो कि वो है ना सर जी बीटा डी गैलेक्टोस का है, और उसका पायरेनोस फॉर्म भी है। वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो कि सर जी वो जुड़ा हुआ है C4 जो बीटा डी ग्लूकोज का है। फिर उसका भी कौन सा फॉर्म है? तो कि सर जी वो पायरेनोस फॉर्म ही होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस यहां से भी निकाले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो वंस अगेन मैंने अभी आपको यही समझाया था कि ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट एसिड वो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में देता है। वो रिड्यूसिंग शुगर भी है क्योंकि उसने ऑक्सीजन बनाया हुआ है, वो म्यूटा रोटेशन भी कर पा रहा है विच रिड्यूस टॉलरेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशंस, और उसका जो मिथाइलेशन होता है तो वो समझाना चाहता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज बोथ आर इन पायरेनोस फॉर्म। ग्लूकोज है उसमें वो रिड्यूसिंग हाफ होता है, गैलेक्टोज नॉन रिड्यूसिंग हाफ होता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सच अ टाइप ऑफ इमल्सिंग एंजाइम्स which is specifically hydrolyze beta glycosidic linkage and also hydrolyze lactose, therefore galactose must be present in the beta form। तो ये बीटा फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो पूरा मैंने आज को आपका जो यहाँ पे सेशंस लिया हुआ है, माल्टोज और लैक्टोज को मैंने अपनी जो भी मेरी कैपेसिटी थी उस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू पोर्शन इज कॉल्ड एज एन पॉलीसैकेराइड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।